Hello everyone, welcome to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 24th of July 2023. From today's newspaper, we will be covering only three important topics with respect to your mains of UPSC journal. As most of the topics in today's newspapers are repeated, for example, about the politics on the Uniform Civil Code, and one editorial is regarding the Thailand politics, which is not absolutely important with respect to your examination. So, we have decided to talk regarding these three important topics. One is India as a great power, then about the tuberculosis, and then as ED's power. Now, coming to the first topic, that India is seen as a great power globally, or India's great power ambition. So, what this editorial is all about? See, in this editorial, the major discussion is that what kind of a global power India should be, और इस क्वेश्चन मार्क के अंदर the writer wants to say that the people are divided into two groups. The one group wants to say that India should focus to rise as a geopolitically to rise in its geopolitical career. That means India should rise as a great international power. But on the other hand, there is one group of the population or a people who believe that इंडिया के खुद के ही जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं वो इतने ज्यादा है कि इंडिया को बाहर अपना सुप्रीम दिखाने से बेटर है पहले अपनी जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है उनको इंडिया सॉल्व करे। ठीक है, तो अब जब ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया एडिटोरियल का, वी कैन नाउ फोकस दैट ऑन द एडिटोरियल व्हाट इट इज एग्जैक्टली सेइंग। So what kind of a global power will India be? There are those who argue that India should aspire to be a great power and assert its growing power internationally. That means there is one group who wants India to rise as a global power at an international platform. At the other hand, the other group argue that India should focus on the uplift of millions of its people above the poverty line, improve its governance, reconcile within the country before venturing into making a better world. Okay, that means the other group is saying that India should focus more on its domestic problems. That the people of India are suffering from poverty. India should focus on that thing. There is problem in the governance of the country. India should focus on that thing. Reconcile with the country. But the writer is saying that it is a false binary. दैट मीन्स ये जो ग्रुप डिवाइड हो गया है दो पखवाड़ों में, ये बहुत ही एक तरह से फॉल्स है, इसका कोई लेना कोई तुक नहीं है एक्चुअली, बिकॉज दे बोथ आर लाइक इक्वली फॉल्टी, दोनों का अपना जगह इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? Notwithstanding the hyper-nationalist and deeply pessimistic narratives, the story of the rise of India and the attendant challenges must be proactively and critically engaged, for the kind of power India would become will not only define the future of the world in important ways, but most definitely shape the destiny of its 1.4 billion cities. तो राइटर इज सेइंग कि इंडिया जो एक ऐसा पावर बनेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो सिर्फ पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर नहीं डिफाइन करेगा, बिकॉज इंडिया इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट प्रेजेंट एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, बट ऑल्सो इंडिया अगर ऐसा करता है कि वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक ग्लोबल पावर की तरफ रेज होता है, तो उसके खुद के जो सिटीजन है 1.4 बिलियन, उनका जो डेस्टिनेशन होगा, जो किस्मत होगी आगे के फ्यूचर की, जो डेस्टिनी होगी, जो लाइफ होगी, वो भी पूरी तरह से बदल जाएगी। Ignoring or dismissing the global consequences of rising India's power is unwise. यानी कि इंडिया अगर एक ग्लोबल पावर की तरफ बढ़ेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करना एक बहुत ही स्टूपिड चीज होगी, ये राइटर बोल रहा है।
ठीक है, राइटर आपको इमेजिन करवाना चाह रहा है कि आप एक बार सोचो तो सही कि इंडिया अगर एक ग्लोबल पावर हो गया तो क्या से क्या हो सकता है, और अगर आप इस consequences को आप इग्नोर कर रहे हो तो ये सबसे ज्यादा अनवाइज है एज पर द राइटर. But doing so without being rooted in the realities of countries' inherent limitations would be a strategic blunder. बट राइटर क्या कह रहा है कि इंडिया अगर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ग्रेट पावर बन रहा है लेकिन अपने खुद की ही प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहा है तो वो भी स्ट्रैटेजिक ब्लंडर होगा. मतलब ये बाइनरी जो आपने बनाया वो फॉल्स है, आपको इनको साथ में लेके चलना पड़ेगा. देखो, इंडिया के लिए एग्जाम्पल की बात करते हैं. राइटर ने बहुत ही सुंदर तरीके से 1991 का जो इंडिया था और अभी जो प्रेजेंट में इंडिया उसको कंपेयर करते हुए बताया कि इंडिया की जो सिचुएशन है वो कहाँ से कहाँ इंप्रूव हो गई है, और आपको इमेजिन करवाना चाह रहा है कि ग्लोबल पावर अगर ये बनेगा तो कैसा रहेगा. ठीक है, तो इंडिया ऑफ 1991, 1947 was the time when India got independent, right? Before 1947, Britishers were ruling. They destroyed the economy of our country in a very brutal way. और इससे इमर्ज होने में हमें काफी टाइम भी लग गया. कैसे? आजादी हमें 1947 में ही मिल गई थी लेकिन 1991 तक हमारी कंडीशन बहुत बुरी थी. हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो सिर्फ और सिर्फ 5.8 बिलियन डॉलर्स थी, विच इज वेरी लेस फैक्ट. नॉमिनल जीडीपी हमारी 270.11 बिलियन डॉलर. तो ऐसी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन कम से कम 846 मिलियन थी उस टाइम, इस पॉपुलेशन का 50% हिस्सा गरीबी में जी रहा था, दैट इज पॉवर्टी. काफी मिजरेबल फिगर्स है ये. तो डिस्पाइट द एफर्ट्स टू डिफ्यूज द फियर्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर, ठीक है, prospects of an India-Pakistan clash and violence in Kashmir was at peak. The collapse of India's trusted partner, the Soviet Union on the one hand, and strained relations with the US further weighed on countries ruling alike. तो अब इस टाइम पे पॉवर्टी तो थी, बट और भी बहुत सारे इश्यूज थे कि क्या हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, क्या हम इन न्यूक्लियर एनर्जी में आगे बढ़ सकते हैं. हमारा जो बेस्ट अलाई हुआ करता था यानी कि सोवियत यूनियन, उसका ब्रेकडाउन हो गया यूएसएसआर का, द ब्रेकडाउन ऑफ द यूएसएसआर. प्लस यूएसए जो ग्रेट पावर बना उसके साथ हमारी बन नहीं रही थी, है ना. तो इन सब चैलेंजेस की वजह से जो पॉलिटिशियंस थे या फिर जो रूलिंग एलाइट थी उनकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई. American officials kept a close watch on India and Pakistan and the nuclear plans and occasionally traveled to the subcontinent to counsel the cantankerous neighbors, the problem causing neighbors. अब वो टाइम जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, हमारे अलाई यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हो चुका था, यूएसए हमारे पीछे पड़ा था, उसको राइटर ने सीधा आज 2023 का जो इंडिया है उससे कंपेयर किया है. फास्ट फॉरवर्ड 3 decades to 2023. और बहुत ही खूबसूरत कंपैरिजन है. कैसे? पहले हमारा फॉरेक्स कितना था? 5.8 बिलियन डॉलर, और 5.8 बिलियन डॉलर से हम पहुंच गए हैं 600 बिलियन डॉलर से. व्हाट अ ब्यूटीफुल इंप्रूवमेंट. एंड वॉर विद पाकिस्तान इज नॉट समथिंग इंडियन लीडर्स लूज स्लीप ओवर, राइट, कि पाकिस्तान उन पर अटैक कर देगा या फिर इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा. ये बहुत पुरानी बात है, सबको पता है पाकिस्तान बहुत ही बुरी हालत में है अभी. हाँ, लेकिन ये पोजीशन चाइना ने जरूर ले ली है. चाइना और इंडिया की जो डिस्प्यूट बॉर्डर्स को लेके होते हैं वो अभी भी कंटिन्यू है. तो चाइना हैज टेकन दैट प्लेस दो, एंड देयर इज अ जनरल सेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑप्टिमिज्म. 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स हमारी कंट्री ने लिए थे, स्पेशली थे एलपीजी रिफॉर्म्स. सर ये गैस सिलेंडर वाली बात नहीं हो रही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. दीज रिफॉर्म्स आर रिलेटेड टू द लिबरलाइजेशन, द प्राइवेटाइजेशन, द ग्लोबलाइजेशन. तो ये जो आपके पास रिफॉर्म्स थे, इन रिफॉर्म्स की वजह से हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो अच्छी खासी बढ़ी. पॉवर्टी में रिडक्शन लाने में काफी ज्यादा हमको हेल्प मिली है. ठीक है,
अगर हम इंडिया की रैंक देखें, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी है वो बहुत ही जल्द $4 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड विद ओवर 100 न्यूक्लियर वॉर। अगर पूरी वर्ल्ड में कंपेयर करें तो हमारी कंट्री की जो मिलिट्री है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भी है, और यूएस अभी अभी हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड भी बना है। तो न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया enjoys a strong relationships also with the several powerful states around the world। देखो, राइटर कहना चाह रहा है, अभी आगे वाली स्लाइड में आएगा भी, कि चाहे हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी भी कम हो, लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी जो है वो हमारी फिफ्थ पोजीशन पे आ चुकी है, और $4 ट्रिलियन तक हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। जो वर्ल्ड के टॉप पावर से यूएस नेशन के साथ हमारे रिलेशन अभी अच्छे चल रहे हैं, पावरफुल स्टेट के साथ हमारे जो रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, सो इट इज अ गुड थिंग, राइट? आई एम सो सॉरी। So the visionary investment made over the past several decades are now beginning to bear the fruit with a permissive external atmosphere for countries, right? ठीक है। अब इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है ये क्यों है? India is also one of the pivotal swing powers of the contemporary international system, strategically located and often playing both the sides with a great plan। मतलब एक झूले की तरह काम कर रहा है। अगर रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, जिसमें इनडायरेक्टली आप यूएस और रशिया के बीच में वॉर देख सकते हो, तो इंडिया का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब पूरा वर्ल्ड ये उम्मीद लगा के भी बैठा है कि इंडिया जो एक मीडिएशन की तरह काम करे रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसका समझौता करने के। The great power politics around the Ukraine war brought renewed focus on India's role in the world politics। कि ये जो एक पॉलिटिकली रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, ये फिर से इंडिया की तरफ फोकस लेके आता है कि इंडिया का रोल क्या होना चाहिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। The US and the wealthy West want India to be on their side। यूएस चाहता है, जो कि एक वेल्दी पैसे वाला जो स्टेट है, वो चाह रहा है कि इंडिया उनकी साइड है। सिमिलरली रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी हालत में जो इंडिया है वो हमारा साथ छोड़ के नहीं जाए। दोनों अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को। So there are serious suggestions that India should be mediated between the Ukraine and Russia to bring an end to the war। लेकिन जो न्यू दिल्ली है यानी कि इंडिया है, ये कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, मीडिएशन की लैंग्वेज को यूज कर रहा है इन अ ग्लोबल क्राइसिस एंड बीइंग अ ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, ईस्ट एंड द वेस्ट, इनडायरेक्टली इंडिकेटिंग दैट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। ऑल्दो टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया स्टिल लिव इन द पॉवर्टी। हालांकि इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल लेवल पे चाहे कितनी भी इंप्रूव हुई हो, लेकिन आज भी इंडिया में कम से कम 10 मिलियन लोग आज भी गरीबी में जी रहे हैं। कंट्री का जो नेशनल पावर है वो ड्रामेटिकली बढ़ा है, मेकिंग इट अ फोर्स विद सिस्टम शेपिंग इट्स कैपेबिलिटीज एंड इंटेंशन। So whether New Delhi is actually punching above its weight or not is something जो आगे आने वाला जो समय है वही बताए। अभी हम कुछ खास इसके बारे में बोल नहीं सकते। फिर राइटर कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में, जो मैं आपको पर कैपिटा इनकम की बात बता रही थी, वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में चाहे इंडिया की जो पोजीशन है वो फिफ्थ नंबर पर आ गई है इसकी, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है वो $1947 थी 2021 में। जबकि जो बांग्लादेश है उसकी पर कैपिटा अपनी कंट्री से ज्यादा थी, यानी कि 2227। लेकिन राइटर कह रहा है बट बांग्लादेश जो है मिलिट्री वर्ल्ड में देखिए तो 40वीं पोजीशन रखता है, और इंडिया का काफी अच्छा खासा दबदबा है मिलिट्री के अंदर अगर देखें तो। चाहे पर कैपिटा इनकम हमारी अच्छी नहीं हो, लेकिन वर्ल्ड पे हमारा काफी ज्यादा सिनेरियो अच्छा बन रखा है अभी। ठीक है, तो द आर्ग्यूमेंट from this comparison is a well-known one। GDP and military strength do not equal the well-being of a country's citizens, but at the same time, the well-being of a country's population
does not equal to the gross material power that the state can bring to bear its foreign and security policy. तो जब इंडिया जब इतना सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो राइटर कह रहे हैं तो डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या है? अभी भी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल या फिर जो गवर्नेंस को लेके इश्यूज है वो आपको फेस करने पड़े, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस may have improved. Okay, it's a task आप सबके लिए, आप सबको पता लगाना है कि who releases the ease of doing business report, और आखिरी जो रिपोर्ट है वो कब पब्लिश हुई थी, और अब ये पब्लिश होना क्यों बंद हो गई है, या फिर the issues with respect to the ease of doing business report. तो ईज ऑफ जो बिजनेस है हमारा वो काफी अच्छे इंप्रूव हुआ, लेकिन आज भी करप्शन कम नहीं हुआ, यानी कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो कहीं ना कहीं ब्राइब वहां पे है। तो ये एक तरह से चैलेंज है इंडिया में। और दूसरी चैलेंज के बारे में बात करेंगे, कुछ ही दिनों की बारिश में आपकी इंडिया की जो नेशनल कैपिटल है वो घुटनों पे आ गई है। जो आपकी हिस्टोरिकल लाल किले जैसी जगह है वो डूब गए हैं पूरी तरह से। अभी भी रैशनल एथनिक क्लैशेस आप नहीं रोक पा रहे हो। नॉर्थ ईस्ट मणिपुर वायलेंस जो हॉटेस्ट टॉपिक है आपका, कोई नया चैलेंज तो है नहीं वो। कब से आपके पास ये इंसर्जेंसी हो रही है, ये जो रैशनल क्लैशेस है वो हो रहे हैं, आप उसको नहीं रोक पा रहे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक लैकिंग हो रही है वो इन डोमेस्टिक चैलेंजेस में हो रहा है। ठीक है, तो इंडिया domestic challenges will continue to distract the attention of its political leaders from attending to the global problems. For the Indian politicians, foreign policy is a luxury she or he cannot afford. कंसर्न क्या है इंडिया के पॉलिटिकल क्लास के लिए? देखो, अगर आपको गरीबी को कम करना है तो यहाँ पे जो आपके पास मिलियंस ऑफ इंडियंस रह रहे हैं उनकी वेलबींग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। A task that is bound to divert its attention from the serious external engagement. तो राइटर कह रहा है कि भाई चिंता की बात यह है कि अगर आपको पॉवर्टी को कम करना है, तो यानी कि कम से कम मिलियंस ऑफ इंडियन सिटीजन ऐसे जो कि अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, ये एक ऐसा टास्क है, अगर आपको इसको सही करना है तो आपका फोकस आपको एक्सटर्नल एंगेजमेंट से हटाना पड़ेगा। When political class gives scant attention to countries' foreign and security policy, as it usually happens in the case of India, it is managed by the career bureaucrats who usually do not diverge from the precedents and avoid taking even the remotely risky decisions. लेकिन अगर पॉलिटिकल विल है ही नहीं, फॉरेन पॉलिसी टेंड टू बी ऑन द ऑटो पायलट। तो ये जो वीक इकोनॉमी का जो प्रेजेंस है, इट टेम्पर्स इंडियाज एलाइड एपेटाइट की फॉर एक्सटर्नल एंगेजमेंट, हम फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, इंडिया की जो वीक इकोनॉमी से डाइवर्ट होने का इनको एक मौका मिल जाता है। ठीक है, नाउ एम्ब्रेसिंग द पावर, तो ये आप ही से सवाल कर रहे हैं कि क्या इंडिया को, शुड इंडिया refrain from shaping the global order until its domestic challenges are resolved or not. आई होप आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा, और आप इसको न्यूज़पेपर को जब आप गो थ्रू करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इससे बात क्या होगी। ठीक है, ऐसे एडिटोरियल में आई एम रिक्वेस्टिंग कि बिकॉज वी आर रीडिंग दिस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हमको डेली चाय के साथ अखबार पढ़ना है 2-3 घंटे। ठीक है, और नॉलेज बढ़ानी है फॉर श्योर, बट इन अ वेरी सिलेक्टिव क्रिस्टल मैनर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ज्यादा स्टोरी पे ना जाके पॉइंट टू पॉइंट हर एक एडिटोरियल की जो फ्लॉज है, कॉन्सिक्वेंसेस है, फिल्म रिलेटेड जो डेटा उसको इकट्ठा करिए और उसको आप मेमोराइज करिए। So this is how you read a newspaper. आपको concept clear हो जाना चाहिए. Now coming to the second topic, that will the generic supply of vegetarian be accessible? कर लग गया? Vegetarian क्या बोल दिया है? देखो, ये एक दवाई का नाम है वेजिक्यूलन, जो कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, द ड्रग एंटी ड्रग रेजिस्टेंट जो ट्यूबरकुलोसिस है, उससे रिलेटेड जो दवाई है उसके बारे में एक न्यूज आई है कि क्या ट्यूबरकुलोसिस आज भी ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है। दूसरा सवाल, क्या जॉनसन और जॉनसन कंपनी विल बी ट्राइंग टू होल्ड ऑन इट्स पेटेंट ऑफ द टीबी, जैसे उसका पेटेंट अभी खत्म हो गया है। एंड हाउ वॉज इंडिया एबल टू रिजेक्ट इट्स होल्ड ओवर द ड्रग?
तो सबसे पहले तो टीबी क्या है उसको समझ लेते हैं, एंटी ड्रग रेजिस्टेंट क्या है उसको देख लेते हैं, और ये पेटेंट और जेनेरिक जो दवाई है वो क्या है उसको देख लेते हैं। फिर ये जो कहानी है वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं टीबी के बारे में, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या है। तो सर ये एक बीमारी है, ठीक है जी। वी ऑल नो दैट व्हाट इज डिजीज व्हेन यू आर फिजिकली मेंटली इमोशनली इल, यानी आपकी बॉडी नॉर्मली जैसे फंक्शन करती है वैसे ही फंक्शन नहीं कर पाती है, वो होता है डिजीज। डिजीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा होता है, एक होता है कॉन्जेनिटल डिजीज और एक होता है आपका नॉन कॉन्जेनिटल डिजीज। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है वो डिजीज जो कि बाय बर्थ होती है, और नॉन कॉन्जेनिटल में वो डिजीज आती है जो आप अपनी लाइफ के थ्रू एक्वायर करते हो, दैट इज द रीजन इसको एक्वायर्ड डिजीज भी बोला जाता है। This acquired diseases can be further classified as infectious, जिसको हम communicable ही बोलते हैं, that means infectious और the communicable diseases, या फिर नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्लियर है, या तो इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज होगा, या फिर नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है यहाँ पे आपको मिलेगा। अब ये मैं क्यों क्लासिफिकेशन बताती हूँ, क्योंकि हर बार इस बार के पेपर में देखा जा रहा है कि इंडिया में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज। तो ये हेल्थ को लेके बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो जता रहे हैं। तो उसी तरह से टीबी भी आपके पास एक बीमारी है। दिस इज योर टास्क कि आप मुझे पता करके बताओगे कि ये कौन सी कैटेगरी में फिट होगी, कॉन्जेनिटल होगी, नॉन कॉन्जेनिटल है, कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, खैर आप इसको पढ़ के अभी समझ जाओगे, क्योंकि पहली लाइन में लिखा है कि इट इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखो पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर पैथोजेंस, पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, एंड वी कैन डिवाइड दीज पैथोजेंस ब्रॉडली एज, या आपके पास वायरस हो सकते हैं, या बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर प्रोटोजोआ हो सकता है, या और भी कोई चीज हो सकती है ऑर्गेनिज्म जिससे डिजीज हो रही हो। तो अगर वायरस से होती तो हम बोलते कि ये वायरल डिजीज है, जैसे कि कोरोना वायरस था। बैक्टीरिया से होती तो वी से कि ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो जब हम टीबी के बारे में बात करते हैं, इसका जो इन्फेक्शन होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, यानी कि ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है। इट कैन प्रैक्टिकली अफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अगर आपको टीबी है तो आपकी बॉडी का किसी भी ऑर्गन को ये इफेक्ट कर सकता है, लेकिन सबसे कॉमन जो ऑर्गन इफेक्ट होते हैं वो है आपके पास लंग या फिर प्लूरा। प्लूरा क्या होता है, जो लंग्स होते हैं आपके, उसके चारों तरफ एक लाइनिंग होती है, उसको प्लूरा कहते हैं, या उसको इफेक्ट करता है। इंटेस्टाइन है, स्पाइन है, या फिर ब्रेन है। अब ये फैल कैसे रहा है, मतलब हम क्या बोलते हैं कि जो वायरस होता है उसका इन्फेक्शन होता है कि आप टच कर लो, या फिर इट कैन स्प्रेड इट बाय ईटिंग और एनी वे। अब बैक्टीरिया से हो रहा है तो इसका इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, अगर किसी पर्सन को टीबी है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उसके क्लोज कांटेक्ट में आते हो तो आपको भी टीबी हो सकता है, स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत डेंस है, छोटी सी जगह पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं और वेंटिलेशन वहां पे कम है। अब क्या इसका इलाज पॉसिबल है, जी हाँ, टीबी ट्रीटेबल है और उसको आप क्योर भी कर सकते हो। ठीक है, अब इट इज ट्रीटेड विद स्टैंडर्ड 6 मंथ कोर्स ऑफ 4 एंटी माइक्रोबियल ड्रग। देखो टीबी में प्रॉब्लम क्या है, टीबी नहीं, कोई भी बीमारी जिसमें लंबा कोर्स चलता है दवाइयों का, उसमें अक्सर ठीक होने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या आपको टीबी हुई है, बिल्कुल हुई है।
अब आपको 6 महीने की दवाई दी जाएगी। उस 6 महीने की दवाई के साथ क्या होता है कि इंसान को लगता है 2-3 महीने में कि भाई मैं ठीक हो गया हूँ, तो या तो वो दवाई छोड़ देता है क्योंकि उसको वो महंगी पड़ती है, या फिर उसकी मजबूरी होती है, या फिर वो कुछ एडिक्टेड होता है कि जिस चीज से उसे बचना चाहिए, लाइक स्मोकिंग एंड ऑल, वो नहीं छोड़ पाता है। तो देर आर मल्टीपल रीजन कि आप ये 6 महीने का जो टीबी का कोर्स है उसको पूरा नहीं कर पाते और वापस फिर आपको साइकिल जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है और आपकी वो टीबी की बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रीटेबल नहीं है, वो आप एज ए पेशेंट कर नहीं पा रहे हो उसको। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि इसमें 6 महीने का कोर्स दिया जाता है, जिसमें 4 आपको एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स है वो दिए जाएंगे। ठीक है, 4 एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स है वो दिए जाएंगे, और उसके साथ आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सुपरविजन दिया जाता है, पेशेंट को सपोर्ट दिया जाता है। एंटी टीबी अगर मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, दे आर बीइंग यूज्ड फॉर डिकेड्स एंड स्ट्रेन्स that are resistant to one or more of the medicines have been documented in every country which is surveyed, right? So when we talk about the multi-drug resistant TB, the meaning of the multi-drug resistant TB we can understand over here. I hope now it is clear that we are talking about the treatment process. It is 100% treatable and it is 100% curable. With respect to what? You will be provided a 6-month course with 4 antimicrobial drugs. But why this treatment is failure? As we said, it needs a consistent treatment of 6 months, and which is hardly impossible for the patients in India which are poor. They cannot afford the medicines of the TB as well. Now, looking at what is this exactly multi-drug resistant TB. If we talk about this multi-drug resistant TB, it is a form of a TB which is causing by bacteria. See, right now we explained about the pathogens, that pathogens are those organisms which are causing the disease. It could be virus as well, it could be bacteria as well, it could be protozoa, or it could be anything. So this is a TB which is caused by a bacteria, which is a type of a pathogen, but it is a type of a TB which is not responding to the two most powerful first line anti-TB drugs. See what I am saying कि अगर आपको टीबी हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो दवाई आपको दी जाती है उनका नाम है आइसोनियाजिड, और दूसरा नाम आपके पास आता है दैट इज रीपैम्पिसिन। ठीक है, अगर टीबी हो रही है तो दीज आर द टू ड्रग्स जो कि मोस्ट पावरफुल है, जो कि टीबी को ठीक करने में काम आता है। एक है आइसोनियासाइड और एक है रिफैम्पिसिन। लेकिन अगर आपका जो डिजीज है वो इस लेवल तक पहुंच गया है कि इन दवाई को लेके आप रेजिस्टेंट हो गए हो, यानी ये दवाई आपके ऊपर कोई असर नहीं डाल रही है, तो in that condition we say that it is a multi drug resistant TB. Multi, why? Because it is getting resistant to more than one drug. And why resistant? Because you are not responding towards that drug. So hence it is known as a multi drug resistant TB. But it is also treatable and curable by using a second line TB drug such as the bedaquiline. तो इसके लिए जो दवाई आ रही है वो है आपके पास बेडिक्यूलिन, विच इज बोन ऑफ कंटेंशन, या फिर आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन इज बेस्ड ऑन दिस बेडिक्यूलिन. So this extensive drug-resistant TB is a more serious form of MDR-TB caused by bacteria that do not respond to the most effective second-line anti-TB drugs as well, often leaving the patients without any further treatment options. I hope TB is clear. The two important drugs are clear. What is anti-drug resistance? It is clear. And how this bedaquiline term came into the picture? It is clear. Now, if it is clear, now we can understand the story behind the article, the story behind the editorial, that why it is in the news. See, the company which formed this medicine, उसका नाम है Johnson and Johnson. When they manufactured it, sorry for this writing. So when this company manufactured it, or when any company manufacture it, they have a system of a patent for a certain period of time. Let's say it is for 20 years.
That means they have a sole authority on the manufacturing of it. But recently, what happened? The patent of Johnson and Johnson got expired on the last week, that is 18th of July. If their patent got expired, that means now there is an opportunity for other manufacturers to make these type of medicine, not these type exactly this type, the method could be different, right? तो अगर कोई और बना पा रहा है तो इसकी जो दवाई है वो सस्ती हो जाएगी, आप इसको जेनरिक मेडिसिन के तौर पर बेच पाओगे, बिकॉज जेनरिक मेडिसिन आर नॉन ब्रांडेड मेडिसिन, राइट? बट उनका जो कंपोजिशन होता है वो ठीक होता है. So this long awaited expiry will allow the generic manufacturers to supply the drug, but Johnson Johnson appears intent on maintaining its monopoly over the Vadiculin market. That means this company is trying again to issue their patent over this medicine. They don't want to lose their autonomy, to lose their basically the monopoly over this medicine. Okay? So they have filed a secondary patent over the Vadiculin till 2027. But why the public outrage is here to the Johnson and Johnson? Like why people are opposing it? People are against this company because they have seek to extend their patent, because people are expecting that this medicine be available as a generic medicine so that it becomes cheaper option for them, but it is not actually happening because people are thinking it will not happen as they are reissuing it for the patent. So deal between the Johnson and Johnson and the Global Drug Facility, a non-profit distribution agency housed in WHO, could extend the access to the drug. But क्या is it possible? Like, do you think it would be possible कि जेनरिक मेडिसिन में आएगा या फिर ये ब्रांडेड मेडिसिन रहेगा या फिर इनका जो पेटेंट है वो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा? What actually happened is कि इनका जो पेटेंट है वो एक्सटेंड हुआ नहीं, वो रिजेक्ट कर दिया गया इंडिया ने. किस बेसिस पे? बिकॉज उसका एक पोजिशन आया था, देयर वर टू सर्वाइवर्स, जो कि हम पेशेंट सर्वाइवर्स बोल सकते हैं टीबी के, उन्होंने कंप्लेन किया दैट we were forced or we were endured for the more toxic treatments that lasted for 2 years, and as a result हमें side effect हुआ, we lost our hearing capacity. तो ये जो लीगल चैलेंज आया है, तो इसकी वजह से एक लैंडमार्क डिसीजन दिया गया वर्ल्ड टीबी डे से पहले, जो कि मार्च में आता है. इंडियन पेटेंट ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया इनके फर्दर जो पेटेंट के लिए जो उन्होंने अपना पर्चा डाला था, दैट वी वांट टू रिन्यू अवर पेटेंट, उसको रिजेक्ट कर दिया गया. ठीक है, तो क्या ये ड्रग अवेलेबल होगा इंडिया में? जी बिल्कुल होगा, बिकॉज नाउ अदर्स कैन ऑल्सो मैन्युफैक्चर इट. बट why this TB is so much important to discuss, or what is the threat from the TB? If we compare this tuberculosis disease from the recent COVID pandemic, कोविड पेंडेमिक से पहले ये टीबी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे डेडलिएस्ट इन्फेक्शियस डिजीज घोषित कर रखा था. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फेक्शियस, दैट मीन्स इट कुड स्प्रेड फ्रॉम one person to another person, as we just have seen in the transmission mode, that it is a bacterial disease and it can get infected from one person to other in a very efficient manner if you are in the close contact with the person. तो हर साल 500,000 पीपल डेवलप ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और उसमें से कम 10.4 मिलियन पीपल ऐसे होते हैं जो कि ड्रग सेंसिटिव टीबी को डेवलप करते हैं. और लेटेंट टीबी का कंसेप्ट आया है जिसमें अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है तो भी आप उस कैटेगरी में चले जाएंगे. So this is the reason that it's important to discuss about the TB. It's important to think about to make certain policies and programs जहाँ पे हम इसका जो medicine है, we try to make it affordable for every section of the population. It should not be in such a situation कि सिर्फ a rich category वाले people तक पहुँच पा रहा है, because ultimately it is more of the awareness, the about the course, about the consistency of the course, how to treat the TB. All right. So I hope this topic is absolutely clear. Now coming to the last topic, which is with respect to the ED's power. See, what is ED? We have discussed it in the multiple times in the previous videos.
आज का जो डिस्कशन है, इट इज मोर स्मॉल डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू दैट इज द ईडी is like a police, like can we compare the ED with the police, right? The powers of the police. It is related to a Tamil Nadu minister. Okay. So ED has arrested with respect to a case of a money laundering, because ED के सारे powers जो है PMLA Act के थ्रू आते हैं, that is the Prevention of Money Laundering Act, and under this the ED, right, has arrested this person and also took him in the custody. But the petitioner said they have filed a case in the High Court, and they said that it is against the landmark judgment of the Supreme Court, जो कि last time दिया गया था 2022. But the High Court has rejected this claim. As the High Court has mentioned, कि last year का जो Supreme Court का judgment था, that was not a generalized judgment. That judgment was based with respect to a specific case, कि उस केस में उस कंटेक्स्ट में यू कैन नॉट कंपेयर दैट कि जो पुलिस है और ईडी के जो पावर्स है वो अलग अलग है. ठीक है. So this is all about this topic. It's a very short discussion in this which is given. So I hope today's editorials are crystal clear to everyone. If you like our videos, please subscribe our channel, like and share. And one more important thing, as you all know, we had already uploaded certain videos of the geography as well. And any valuable feedback, it is always welcome. You can just write down in the comment sections. We'll try to contact you as soon as possible and we'll try to improve on it. So thank you so much. That's it for today.